Hello guys, how are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj, and today I am here with you all to just have a very small discussion on one of the very important amendment uh, which has been made by the Insolvency and Bankruptcy Board of India in liquidation process regulations. As you are aware that liquidation process regulations has been issued by the IBBI in the year of 2016, and that regulation is known as the Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Regulation 2016. So this is the principal regulations in which there is a certain amendment which has been recently made by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, and the date of amendment is 28th of January 2025. Guys, this amendment is very much important uh, for the insolvency professionals, and being the insolvency professionals or being the insolvency practitioners who is working in the IBC domain must be having idea about these amendments, because this amendment is going to affect us, our working, and the entire ecosystem of liquidation process. So we will be having each discussion on each amendments under these regulations. So let's have a look what has been made uh, changes in the liquidation process regulations. First of all, as you can check out on my screen, Insolvency and Bankruptcy Board of India notifications, New Delhi, 28th of January 2025. So date of notification is 28th of January 2025, and Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process Amendment Regulation 2025, and file number IBBI slash 2024 dash 25 ZN REZ 121. So this is the file number, and इसमें बस ये बताया गया है कि IBBI इस सर्कुलर्स को किस प्रोविज़न के तहत इशू किया है. तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो इस पर हम लोग कुछ डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं. और आपको पता है कि जो सेक्शन 196 है read with section 240 that enables Insolvency and Bankruptcy Board of India to make the amendment in regulations. And section 196 is very comprehensive sections which gives so many powers to the Insolvency and Bankruptcy Board of India for bringing circulars, clarifications, notification, amendment. So you can check out the section 196 and 240 from the code. I'm not going to have a discussion on these sections, so directly I will be having discussion on the amendment portions. And guys, इस जो हमारा रेगुलेशंस हैं उसको क्या कहा गया है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025. इस रेगुलेशन को किस नाम से हम लोग जानेंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया liquidation process amendment regulation 2025. And this amendment has been made in the principal regulations, that is IBBI liquidation process regulation 2016. सो जो हमारा 2016 की जो रेगुलेशन है लिक्विडेशन प्रोसेस की, उस रेगुलेशन में ये अमेंडमेंट किया गया है, और इस अमेंडमेंट को हम लोग IBBI लिक्विडेशन प्रोसेस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के नाम से जानेंगे. सो होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है. सो जो ये फर्स्ट कह सकते हो कि अमेंडमेंट क्लॉज है, इसमें ये बात कही गई है. नाउ सेकेंड जो बात इसमें लिखी गई है वो कि ये जो इफ़ेक्टिव कब से होगा, तो इफ़ेक्टिव की बात है कि ये इफ़ेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. सो दिस हैज़ बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. ठीक है. एंड दिस इज़ इफ़ेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 28th ऑफ जनवरी 2025. हम लोग ये जो ऑफिशियल गज़ट का ही नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि IBBI की साइट पे अपलोड किया गया था. तो दिस इज़ वेरी मच इफेक्टिव एज वेल फ्रॉम द 28th ऑफ जनवरी इटसेल्फ. तो दिस इज़ अमेंडमेंट संख्या 1, जो कि अमेंडमेंट नंबर 1 था हमारा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अमेंडमेंट नंबर 2.
इसमें ये कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज द प्रिंसिपल रेगुलेशन। जो हमारे 2016 की रेगुलेशन है उसको प्रिंसिपल रेगुलेशन के नाम से हम लोग आगे सर्कुलर में रेफर किए हैं, ठीक है। इन रेगुलेशन 45 इन सब रेगुलेशन 3 इन क्लॉज ए आफ्टर द वर्ड सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न को क्या किया गया है, एड ऑन किया गया है, सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न ऐड किया गया है इन द हमारा जो प्रिंसिपल रेगुलेशन है। तो गाइस हमें इसे समझने से पहले हमारे को ये जानना होगा कि रेगुलेशन जो 45 है वो क्या है, सब रेगुलेशन 3 क्या है ना, और सब रेगुलेशन 3 में क्लॉज ए क्या है। बिकॉज जब तक हमारे को ये नहीं पता चलेगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू नो कि क्या है बेसिकली। तो गाइज जो रेगुलेशन 45 ऑफ द IBBI लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन और जो हमारा प्रिंसिपल रेगुलेशन है लिक्विडेशन प्रोसेस की, उसकी 45th रेगुलेशंस ये कहता है कि फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन। अब फाइनल रिपोर्ट क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा बिकॉज फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट लिक्विडेटर बनाता है, ठीक है, लिक्विडेटर इसे बनाता है और किसे ये सबमिट करना होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT को और IBBI को। बट ये कब बनाया जाता है, इस फाइनल रिपोर्ट को डिसोल्यूशन एप्लीकेशंस को सबमिट करने से पहले बनाया जाता है। और फाइनल रिपोर्ट को डिसोल्यूशन एप्लीकेशन के साथ ही हम लोग लगा करके फाइल करते हैं, ठीक है। IBBI को पहले हम लोग बना करके सबमिट कर देंगे। तो फाइनल रिपोर्ट में बेसिकली ज़्यादा क्या है, किस लिए बनाया जाता है, तो गाइज कह सकते हो कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस है उसका कंक्लूडिंग रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में तमाम वो चीज़ हमारे को मेंशन करना होता है कि कितने एसेट्स को हमने ऑक्शन किया, ऑक्शन से कितने प्रोसीड्स आए, प्रोसीड्स को किस तरीके से हमने स्टेक होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, रिसीट एंड पेमेंट हमारे को बनाना होता है। तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है जो लिक्विडेशन प्रोसेस की तमाम डिटेल्स को हम लोगों को इसमें मेंशन करना होता है ना, और उसे हमारे को सबमिट करना होता है IBBI एंड NCLT को, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेगुलेशन 45 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन। इसको मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया आपको, बट यही है फाइनल रिपोर्ट लिक्विडेशन प्रोसेस की जो डिसोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हमारे को बनाना होता है और उसे NCLT और IBBI को सबमिट करना होता है, राइट। और एक फाइनल रिपोर्ट के साथ साथ फॉर्म H भी होता है, ठीक है। फॉर्म H क्या होता है, जो कि हम लोग बनाते हैं, इसमें डिटेल टाइम लाइन होते हैं जो थ्रू आउट द लिक्विडेशन प्रोसेस एक्टिविटीज़ को हम लोग कैरी ऑन करते हैं। उस एक्टिविटीज़ की डिटेल्स मेंशन की जाती है कि वो एक्टिविटीज़ कब ड्यू हुआ, कब किया, ठीक है। एंड दैट हैज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द फाइनल रिपोर्ट एंड फॉर्म H। बिकॉज ये दोनों ही फाइनल रिपोर्ट और फॉर्म H दोनों को हमें रिजोल्यूशन एप्लीकेशन के साथ फाइल करना होता है, राइट। तो दिस इज़ रेगुलेशन 45। नाउ इसका जो रेगुलेशन 45 की सब रेगुलेशन 3 है, इसमें ये बताया गया है कि लिक्विडेटर शैल सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फाइनल रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन कंप्लाइंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म H टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना। जो लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, फाइनल रिपोर्ट बनाएगा और कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो कि किस में बनाया जाता है, फॉर्म H में बनाया जाता है। फॉर किस चीज़ के लिए, कब बनाया जाएगा, क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। क्या किया जा रहा है, कॉर्पोरेट डेटर को सोल्ड किया जा रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। और ये तो हमारा रेगुलेशन 45 सब रेगुलेशन 3 क्लॉज ए कहता है, ठीक है। इसी क्लॉज में एक जो ऐड किया गया है, क्या किया गया है, आफ्टर द वर्ड सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न के बाद द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड। तो दिस इज ये हमारा क्या है, इंसर्ट किया गया है ना, ये इंसर्ट किया गया है, ठीक है। सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न के बाद ये किया गया है कि अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज़ बीन सैंक्शनड अंडर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट।
तो इसमें हम लोग शॉर्ट में ये कहते हैं कि फाइनल रिपोर्ट और फॉर्म एच जो है वो हम लोगों को आईबीबीआई को सबमिट करना है, शोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न हो या फिर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज़ बीन सैंक्शन अंडर द 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहले जो वर्ड्स हुआ करता था गाइस वो ये था कि सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न हो रही है कॉर्पोरेट डेटर को, तो हमारे को वहाँ पे फॉर्म कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाने हैं एंड फॉर्म एच जो है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट है वो बनाना है और सबमिट करना है। कब? सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, बट नाउ व्हाट हैज़ बीन चेंज्ड कि या तो सीडी का सेल हो रहा है एज अ गोइंग कंसर्न या फिर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अप्रूव्ड हो गया है सेक्शन 230। तो दोनों ही केसेस में, ठीक है, हमारे इस दोनों ही केसेस में सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न या फिर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की स्कीम अप्रूव हुई है, उस केस में भी आपको क्या करना है, फाइनल रिपोर्ट बनाने हैं एंड फॉर्म एच बनाना है और सबमिट करना है। देखो ये चीज़ बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि यार कंपनी का किसी ना किसी तरीके से तो रेजोल्यूशन ही हो रही है ना। या तो कंपनी क्या हो रहा है, लिक्विडेशन सब खत्म हो गया, सेल करके कंप्लीटली वाइंड अप हो गया चीज़ें, तब भी हमारे को फाइनल रिपोर्ट देना है। कंपनी का सेल ऐसे गोइंग कंसर्न हो गया तो भी हमारे को देना है। और कंपनी की कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट स्कीम, जो सीडी की कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट स्कीम अप्रूव हो गई, उस केसेस भी हमारे को देना है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, ये चीज़ें नहीं थी, बट कुछ एक लिक्विडेटर इस चीज़ को प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे। ऑल दो अमेंडमेंट में ये नहीं था कि फाइनल रिपोर्ट देना है या फिर नहीं देना है। रिसेंटली आई हैव डन अ मैटर इन विच आई हैव प्रिपेयर्ड फाइनल रिपोर्ट एंड फॉर्म एच, और उसमें सेक्शन 230 की कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट स्कीम अप्रूव हुआ था। और मैटर इज़ नॉट टू ओल्ड, अभी से 4-5 महीने पहले ये मैटर हुआ था और हमने ये चीज़ बनाया था, फाइनल रिपोर्ट बनाया था और फॉर्म एच दोनों बनाया था और उसको सबमिट किया था। तो बहुत सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं जो कि प्रैक्टिस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट स्कीम अप्रूव हो रहा था तो वो फाइनल रिपोर्ट बना रहे थे, फॉर्म एच बना रहे थे और सबमिट कर रहे थे। तो दिस इज़ अमेंडमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि प्रैक्टिस में था, लोग फॉलो कर रहे थे, बट कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं था। बट नाउ द आईबीबीआई हैज़ made the amendment and clearly stated that कि once the scheme of compromise or amendment has been approved, in that case also the liquidator is required to prepare a final report and compliance certificate in Form H and has to submit to the board and NCLT, right? Now, so this is the amendment संख्या 2। होप कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया एंड इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नाउ वी विल हैव अ डिस्कशन एट द अमेंडमेंट नंबर 3। एंड अमेंडमेंट 3 क्या है? इन द प्रिंसिपल रेगुलेशन, इन रेगुलेशन 46 फॉर सब रेगुलेशन 1 द फॉलोइंग सब रेगुलेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो जो रेगुलेशन 46 है ऑफ प्रिंसिपल रेगुलेशन, उस रेगुलेशन की 46 की सब रेगुलेशन 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि रेगुलेशन 46 की सब रेगुलेशन 1 क्या था और उसमें क्या चेंजेस किया गया है। देखो, रेगुलेशन 46 सब रेगुलेशन 1 कहता है कि बोर्ड शैल ऑपरेट एंड मेंटेन एन अकाउंट टू बी कॉल्ड कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आईबीबीआई को क्या करना होता था कि एक कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट को ओपन करना पड़ता था, जो कि हमारी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो था उसमें ओपन करना होता था। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। बट आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट ओपन करने के लिए टाइम लग जाता था, वो ईजिली नहीं हो पाता था। दैट इज़ हैविंग सर्टेन प्रोसीजर्स। आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट को ओपन करवाना है तो दैट इज़ सम हाउ अ लेंदी प्रोसेस, उसमें थोड़ा टाइम लगता था। नाउ इससे क्या होता था, चीज़ें डिले हो जाती थी। नाउ व्हाट हैज़ बीन डन, या इसमें अमेंडमेंट लाया गया है और इसमें ये बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट है, ठीक है, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट को क्या करेगा, द बोर्ड शैल मेंटेन एंड ऑपरेट कॉर्पोरेट अकाउंट टू बी कॉल्ड एन अकाउंट called corporate liquidation account with a scheduled bank
ठीक है, यहाँ से पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को हटा करके शेड्यूल बैंक कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसके पीछे क्या इंटेंट है, आई एम नॉट हैविंग मच आइडिया अबाउट दैट, बट सिंपली चीज़ें यहाँ है कि ये कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट को पहले पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के पास ओपन किया जाता था। नाउ व्हाट हैज़ बीन डन कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट को ना खोल करके शेड्यूल्ड जो हमारा बैंक है उनके पास ओपन करो और उसको ऑपरेट करो, मेंटेन करो। तो कम कह सकते हो कि आईबीबीआई के लिए थोड़ा सा ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमारे को जो सर्टेन प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है फॉर ओपनिंग कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट विद द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो अब यहाँ पे नहीं रही, और हम लोग ईज़िली अकाउंट को कहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक के पास ओपन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अमेंडमेंट नंबर 3। होप दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस जनरल बातों में क्या हो कि कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट को पहले पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के पास ओपन करना होता था, बट अब उसको वहाँ से चेंज करके शेड्यूल्ड बैंक के पास ओपन कर लो और बोर्ड उसको मेंटेन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं नाउ। ठीक है, दिस इज़ द अमेंडमेंट संख्या 3। नाउ द अमेंडमेंट नंबर 4 क्या है? फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, मॉनिटरिंग फॉर्म्स कह सकते हो अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस। गाइस, you are all very much aware that कि recently there are the certain circulars of the IBBI। उस circulars में ये बताया गया था कि liquidator is supposed to file certain forms under the liquidation process, and वो forms जो circulars में बताया गया था वही है LIQ form 1, 2, 3 and 4। so these were the forms which liquidator is required to file in the liquidation process on time to time. And I have also recorded certain videos on filing of forms, and it's a due date, very detailed video I have recorded and uploaded on my YouTube channels on compliances of filing of the forms under the liquidation process as well as voluntary liquidation process. Later on I have also recorded a video on the extension of date for filing of these forms and uploaded on my YouTube channels. And but that videos those videos was those videos has been recorded for circulars, but now what has been done that कि IBBI ने कंप्लीट रेगुलेशन लेकर के आ गई है। हमारा जो IBBI लिक्विडेशन प्रोसेस है उसमें अमेंडमेंट ला करके इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, पहले वो सर्कुलर के फॉर्म में था। तो दिस इज़ द मेजर चेंजेस, बट वी विल बी हैविंग अ लुक कि क्या है इस ए फॉर्म्स, इसकी क्या ड्यू डेट्स हैं और इसके क्या अदर कंप्लाइंसेस होने वाली है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन रेगुलेशन 47B। देखो इसमें रेगुलेशन 47A के बाद एक नया रेगुलेशन को इंसर्ट किया गया है, दैट इज़ नॉन एज रेगुलेशन 47B, and this regulation is for filing of the forms. Now let's have a discussion. The liquidator shall file a form along with the enclosure thereto on electronic platform of the board as per the timeline stipulated अगेंस्ट इस फॉर्म। देखो ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट किया जाएगा, तो पहले IBBI के साइट पे फॉर्म को सबमिट होगा, IBBI के साइट पे होगा, उसको लॉगिन करना होगा लिक्विडेटर को, है ना, लॉगिन करना होगा, और उसके लिए यूज़र ID होगा, पासवर्ड होगा वहाँ पे करके, उसके बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा लिक्विडेशन फॉर्म्स, वॉलंटरी लिक्विडेशन फॉर्म्स। सो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द लिक्विडेशन फॉर्म्स एंड आपको वहाँ पे असाइनमेंट्स ऐड करके आप प्रोसीड कर सकते हो फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स, राइट। और सभी फॉर्म्स की अलग अलग ड्यू डेट दिया गया है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिटेल्स। देखो LIQ 1 फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट टिल द पब्लिक अनाउंसमेंट, जिस दिन लिक्विडेशन स्टार्ट होती है वहाँ से पब्लिक अनाउंसमेंट तक के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे को LIQ फॉर्म 1 में देना है, और इसका जो ड्यू डेट होने वाला है वो ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। ठीक है, ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। तो सपोज़ करो कि टुडे जो आज है 12th ऑफ फेब में हमने फाइल किया LIQ पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, तो हमारा जो ड्यू डेट होगा सब्सिक्वेंट मंथ मार्च में होगा, और
लेटेस्ट बाई 10th ऑफ मार्च तक हमारे को करना है, ठीक है। पहले कर दो या फिर लेटेस्ट बाई 10th ऑफ मार्च, यदि उसके बाद करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगे। इसी तरीके से LIQ फॉर्म 2 है, इसमें जो हमारे डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट टिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, बिकॉज हमने पब्लिक अनाउंसमेंट तक की जो इन्फॉर्मेशन है LIQ फॉर्म 1 में दे दिया, तो पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद और प्रोग्रेस रिपोर्ट तक की, ठीक है, हमारे को डिटेल्स देने हैं LIQ फॉर्म 2 में। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होने वाले हैं, तो डिटेल्स ऑफ वैल्यूएशन होने वाला है, सेल कुछ हुआ है तो उसका लिटिगेशन है तो उसका अवॉइडेंस एप्लीकेशन यदि फाइल किया गया है तो उसका मीटिंग ऑफ SSC हुआ है ना, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का मीटिंग, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो दीज आर द डिटेल्स विच वी हैव टू submit in liquidation form 2, and the due date of this form is going to be on or before 10th day of the subsequent month. Same, let's with the understand with an example. Suppose कि आज हमारा 13th ऑफ फेब को हमने ये फॉर्म को कह सकते हो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट टिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जब भी हमारा सबमिट होगा, ठीक है, उसके बाद करना होता है। तो सपोज करो कि हमने दिसंबर क्वार्टर की प्रोग्रेस रिपोर्ट कब तक कर दिया, 15 जनवरी तक हमने कर दिया, तो सब्सिक्वेंट मंथ जो कि हमारा है 10th ऑफ फेब, है ना, 10th फेब तक हमारे को ये सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, पेनल्टी लगेगा। इसी तरीके से लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल कि हमने 31 मार्च तक 31 मार्च 2025 का प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो 15 अप्रैल के बाद जो 10th में, लेटेस्ट बाई 10th में तक हमारे को वो LIQ फॉर्म 2 सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे भी पेनल्टी मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, जब भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सबमिट करोगे उसके अगले महीने का सब्सिक्वेंट मंथ की लेटेस्ट बाई 10th डे हमारे को सबमिट करना है, इल्स वी विल हैव टू मेक द पेनल्टी, फाइलिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा। अब LIQ फॉर्म 3 क्या है, LIQ फॉर्म 3 में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन देने हैं वो है फाइनल रिपोर्ट टू एप्लीकेशन ऑफ डिजोल्यूशन, फाइनल रिपोर्ट से लेकर के डिजोल्यूशन एप्लीकेशन तक की डिटेल्स हमारे को इसमें देने हैं। एंड दिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ अनक्लेम प्रोसीड्स, इफ़ देयर इज़ अनक्लेम प्रोसीड्स, जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। सेल लिटिगेशन का भी डिटेल हमारे को देना होगा, अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन है तो उसका डिटेल देना होगा, रियलाइजेशन की डिटेल देना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स है उसका डिटेल देना पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल देना पड़ेगा। तो LIQ फॉर्म 3 के अंदर ये डिटेल्स हमारे को देने हैं। और अगेन द ड्यू डेट ऑफ दिस फॉर्म इज ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। तो लेट्स से कि एज ऑन टुडे 13th ऑफ फरवरी को हमने फाइनल रिपोर्ट डिजोल्यूशन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो वहाँ से हमारे को 10th ऑफ मार्च तक हमारे को करना है, लेटेस्ट बाई 10th ऑफ मार्च, या फिर उससे पहले हमें LIQ फॉर्म 3 को सबमिट करना होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ डिजोल्यूशन एप्लीकेशन, क्लोजर एप्लीकेशन, डिजोल्यूशन एप्लीकेशन ये होगा जब कंपनी डिजॉल्व हो रही है, या फिर क्लोजर एप्लीकेशन कह सकते हो कि उस केस सपोज करो कि CD की सेल हो जाती है एज अ गोइंग फंक्शन, या फिर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट अप्रूव हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमारे को क्लोजर एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। एंड जब भी हम लोग क्लोजर एप्लीकेशन सबमिट करें या फिर डिजोल्यूशन एप्लीकेशन सबमिट करें, तो वहाँ से हमारे को एप्लीकेशन ये LIQ फॉर्म 3 को सबमिट करना है लेटेस्ट बाई 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। तो 13th ऑफ फेब को सबमिट किया तो लेटेस्ट बाई 10th ऑफ मार्च तक हमारे को LIQ फॉर्म 3 सबमिट करना पड़ेगा। LIQ फॉर्म 4 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो LIQ फॉर्म 3 में है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डिजोल्यूशन टू द ऑर्डर ऑफ द डिजोल्यूशन, जिस दिन हमने एप्लीकेशन लगाया है डिजोल्यूशन की, वहाँ से लेकर के और जब तक ऑर्डर आती है, ठीक है, तो उस दिन तक की इन्फॉर्मेशन इसमें हमारे को देना है। दिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इसमें होते हैं। और अगेन इसकी जो ड्यू डेट है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा कि ऑन और बिफोर द 14th डे ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजोल्यूशन, 14 दिन के अंदर जिस भी दिन डिजोल्यूशन ऑर्डर पास किया जाता है वहाँ से 14 डेज के अंदर हमारे को ये क्या है फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, LIQ फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें जो ड्यू डेट है फॉर LIQ फॉर्म 1, 2, 3 एक सिमिलर पैटर्न में चल रहा है। LIQ फॉर्म की जो
ड्यू डेट है वो थोड़ा सा अलग पैटर्न में चल रहा है, बिकॉज ये 14 डेज के अंदर फाइल करना है, ठीक है, ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजोल्यूशन और डिस्चार्ज ऑर्डर जो भी है या क्लोजर ऑर्डर जो भी है। और यहाँ पे तो आपको पता ही चल गया। नाउ रेगुलेशन 47B सब रेगुलेशन टू क्या होता है, लिक्विडेटर शैल इंश्योर दैट द फॉर्म्स एंड इट्स इनक्लोजर फाइल्ड अंडर दिस रेगुलेशंस आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट होनी चाहिए गाइस, ऑब्वियस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो फॉर्म के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म्स में मेंशन कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म्स में अनेक्स करो, दैट शुड बी कंप्लीट एक्यूरेट होनी चाहिए। एंड फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स अंडर दिस रेगुलेशन आफ्टर ड्यू डेट of the submissions, whether by correction, updation, or otherwise, shall be accompanied by a fee of the 500 rupees per forms for each calendar month of the delay after the date notified। तो कैलेंडर मंथ वाइज आपकी फीस रहेगा यदि आप ड्यू डेट पे फॉर्म सबमिट नहीं करते हो या फिर आप अपने फॉर्म्स में किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन करते हो, करेक्शन करते हो, अपडेशन करते हो, तो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट फाइल दिस फॉर्म्स अलॉन्ग विद द फाइलिंग फी ऑफ 500 अलॉन्ग विद द GST। इसमें लिखा नहीं है बट उस पर GST भी लगेगा, राइट। द लिक्विडेटर शैल लाइबल टू एनी actions with the board may take as deemed fit under this code or any regulations made thereunder, including refuse to issue, renew the authorization of assignments। यदि आप ये फॉर्म्स को सबमिट कर रहे हो और तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके लिए भी आपको लाइबल रहना पड़ेगा, बिकॉज IBBI को लगता है कि आपने जो फॉर्म्स दिया है वो दैट इज़ करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो उसके लिए IBBI एक्शन ले सकती है। एंड यू आर सपोज टू अधेयर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी एक्शन ली जाती है IBBI, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑथराइजेशन ऑफ जो असाइनमेंट होती है FE है उसको रिन्यू करने में भी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों होगा, या तो आपने फेलियर टू फाइल द फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स फाइल किया गया है, डिले इन फाइलिंग किया गया है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। अब है क्या कि अमेंडमेंट नंबर 5, अमेंडमेंट नंबर 5 है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। देखो इसमें जो शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल में ये चेंजेस लेकर के आया गया है। शेड्यूल इन द प्रिंसिपल रेगुलेशंस ड्यूल 1 इन पैरा 1, ठीक है, पैरा 1 के अंदर ये चेंजेस आया है। क्लॉज 1D को ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज 1D क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एंड देन फिर इसमें क्या है कि ये जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल 1 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, वो बेसिकली डील करता है मोड ऑफ सेल। मोड ऑफ सेल जो होते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस में, ऑक्शन या प्राइवेट सेल की बात कही गई है। तो इसी में जो फर्स्ट हमारा है ये फर्स्ट पैरा जो ऑक्शन से रिलेटेड है, उसकी जो क्लॉज संख्या 1D है उसको डिलीट कर दिया। 1D बेसिकली हुआ क्या करता था कि लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड एटलीस्ट 14 days for issue of the public notice for submission of eligibility documents। now this requirement has been omitted, इसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद इसमें एक न्यू कह सकते हैं कि वो सब क्लॉजेस को इंसर्ट किया गया है। इंसर्ट किया है, सब्सटीट्यूट किया गया है। जो एग्जिस्टिंग सब क्लॉज हुआ करता, क्लॉज 1E हुआ करता था, वो कहता था कि लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड टू क्वालिफाइड बिडर एटलीस्ट 7 days फॉर इंस्पेक्शन और ड्यू डिलिजेंस ऑफ एसेट्स अंडर ऑक्शन फॉर्म from the date of the declaration of qualified bidder। so this was the requirement कि 7 days हमारे को देना है for inspection और ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, ऑफ एसेट्स अंडर ई ऑक्शन। तो क्वालिफाइड बीडर को 7 days की टाइम दी जाती थी। बट नाउ व्हाट हैज़ बीन डन, लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड टू द प्रोस्पेक्टिव बीडर एक्सेस ऑफ एसेट्स अंडर ऑक्शन टू फैसिलिटेट देयर इंस्पेक्शन एंड ड्यू डिलीजेंस। यहाँ पे 7 दिन का टाइम को हटा करके यहाँ पे हम लोग एक्सेस दे देंगे, ठीक है। जो भी प्रोस्पेक्टिव बीडर्स हैं ना, उनको हम लोग टाइम लाइन को हटा करके क्या किया है कि लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड व्हाट, प्रोवाइड टू द प्रोस्पेक्टिव बीडर एक्सेस ऑफ द एसेट्स अंडर ई ऑक्शन। जो भी एसेट्स को हम लोग ई ऑक्शन कर रहे हैं उसका एक्सेस दे देंगे टू फैसिलिटेट देयर इंस्पेक्शन एंड ड्यू डिलीजेंस। तो
दिस हैज़ बीन न्यू प्रोविजंस। नाउ थर्ड जो इस शेड्यूल में अमेंडमेंट लाया गया है, आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग न्यू क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड। तो सर्टेन न्यू क्लॉजेस को इंसर्ट की गई है इसमें। एक तो हो गया हमारा क्लॉज 5A इंसर्ट किया गया है, द पब्लिक नोटिस शैल स्टेट द प्रोस्पेक्टिव बीडर shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the code to the extent applicable, and if found ineligible at any stage the earnest money deposit shall be forfeited, है ना। तो ये बहुत ही सही चीज़ ऐड ऑन कर दिया गया है कि जो प्रोस्पेक्टिव बीडर है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नोटिस में ये चीज़ को मेंशन कर दिया जाएगा कि प्रोस्पेक्टिव वीडर्स शैल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग, और उस अंडरटेकिंग में दे हैव टू क्लियरली स्टेट दैट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी इनएलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 29A। तो 29 में वो इनएलिजिबल नहीं है, वो चीज़ मेंशन करेंगे ऑफ द कोड टू द एक्सटेंट अप्लीकेबल, उस एक्सटेंट तक जो इनके ऊपर अप्लीकेबल है प्रोस्पेक्टिव बीडर। एंड इफ फाउंड इनएलिजिबल, दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि यदि फाउंड किया जाता है इनएलिजिबल at any stage the earnest money deposit shall be forfeited. Now this one is very much stake provision has been implemented. चलो अंडरटेकिंग तक तो ठीक था, उसके बाद जो चीज़ें ऐड ऑन किया गया दैट इज़ वेरी गुड एंड ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई रियली लाइक दिस अमेंडमेंट, है ना। तो उनके जो अर्नेस्ट मनी है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है न्यूली, पहले ही नहीं हुआ करता था, नाउ इट हैज़ बीन इंसर्टेड। नाउ आफ्टर रेगुलेशन कह रहे हो रेगुलेशन, इसमें पैरा 12 के बाद गाइस, ये पैरा मैं रेगुलेशन बोल दिया, पैरा 12 के बाद एक न्यू पैरा ऐड किया गया जो कि है पैरा नंबर 12A, एंड इसमें कहता है कि विद इन 3 days ऑफ द डिक्लेयरिंग द हाइएस्ट बीडर द लिक्विडेटर शैल कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस एंड वेरीफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ द हाइएस्ट बीडर। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है कि जो हाइएस्ट बीडर है ना उसी का ड्यू डिलिजेंस करने हैं और विद इन 3 days करने हैं। विद इन 3 days हमारे को क्या करना है, हाइएस्ट बीडर का ड्यू डिलिजेंस करना है। सो नाउ दिस हैज़ बीन गुड अमेंडमेंट, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, नाउ इट हैज़ बीन एडेड। नाउ 12B भी इसमें ऐड किया गया है, पैरा नंबर 12B ऐड किया गया है, एंड लिक्विडेटर शैल प्रेजेंट द ऑक्शन रिजल्ट्स डिटेल्स ऑफ द हाईएस्ट बीडर एंड ड्यू डिलिजेंस कंडक्टेड ऑन इट टू द कंसल्टेशन कमिटी। तो रेगुलेशन 31 के अंदर तो लिक्विडेटर प्रेजेंट कर देगा ये ऑक्शन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, एंड हाईएस्ट बीडर की डिटेल्स, ड्यू डिलिजेंस की रिजल्ट जो भी है, टू द कंसल्टेशन कमिटी। तो दिस वन है is also very welcome move in this amendment. Now पैरा 12C ऐड ऑन किया गया है, ये भी पहले नहीं हुआ करता था, नाउ इट हैज़ बीन एडेड। और इसमें क्या ऐड किया गया है कि लिक्विडेटर शैल डिक्लेयर द हाईएस्ट बीडर एज द सक्सेसफुल बीडर और रिजेक्ट सच बीड आफ्टर कंसल्टेशन विद कंसल्टेशन कमिटी। अब देखो, कंसल्टेशन कमिटी से लिक्विडेटर कंसल्ट करेगा और उसमें जो हाईएस्ट बीडर को या तो सक्सेसफुल बीडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट करेगा, सच बीड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट वो सारी चीज़ कब होगा, कंसल्टेशन करने के बाद। 31A के तहत कंसल्टेशन कमेटी को कॉल किया जाएगा, लिक्विडेटर उसमें प्रेजेंट करेगा कि ये हाईएस्ट बीडर हैं और इनको सक्सेसफुल बीडर डिक्लेयर किया जाना चाहिए या फिर इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए सच बीड। तो ये तो डिपेंड करता है एसएससी की क्या डिसीजन होते हैं उसमें, राइट। नाउ अनदर पैरा हैज़ बीन एडेड 12D, एंड इफ़ द बीडर इज़ फाउंड इनएलिजिबल द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बाय हिम शैल बी फॉरफिटेड, क्योंकि उनको ऑलरेडी पब्लिक अनाउंसमेंट में नोटिफाई कर दिया था कि आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा और उस अंडरटेकिंग में मेंशन करना पड़ेगा कि यू आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A, एंड इफ़ फाउंड इनएलिजिबल तो आपके द्वारा जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी दी गई दैट विल बी फॉरफिटेड। तो दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी मच क्लियर। नाउ 12E एड ऑन किया गया है ना, अनदर पैरा, और इसमें क्या है, इन केस ऑफ द हाईएस्ट बीडर इज फाउंड इन एलिजिबल द लिक्विडेटर में इन कंसल्टेशन विद द कंसल्टेशन कमेटी डिक्लेयर द नेक्स्ट हाईएस्ट बीडर द सक्सेसफुल बीडर, ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग द सम सेम प्रोसेस प्रोवाइडेड अंडर 12A।
टू 12E, है ना। तो 12A से लेकर के 12E तक की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, और जो सेकंड हाईएस्ट बीडर है उसको अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ एसएससी हम लोग लिक्विडेटर क्या करेगा, उसको सेकंड हाईएस्ट बीडर डिक्लेयर किया जा सकता है, सक्सेसफुल बीडर डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ लास्ट जो अमेंडमेंट है उसमें ये है कि इन द प्रिंसिपल रेगुलेशन इन शेड्यूल 2 इन फॉर्म 1 4 टेबल बी, देखो शेड्यूल सेकंड जो है ना उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स दी गई है, ठीक है। और उसी फॉर्म्स में फॉर्म नंबर जो आई है उसमें टेबल बी को क्या किया गया है कि अमेंड किया गया है। देखो गाइस, ये जो कुछ एक चीज़ें हैं ये यहाँ से इतने हैं ना, ये नेचर ऑफ द अमाउंट ड्यू और ये रिमार्क्स, ये तो था ही था। इसमें जो चेंजेस आया है ये है बेसिकली, एक तो चेंजेस एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960 और एनी अदर लॉ, ये एक ऐड ऑन किया गया है, ये ऐड ऑन किया गया है, और ये ऐड, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, इसको ऐड ऑन किया गया है। पर हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली डिटेल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटाइटल्ड टू अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स, जो अब वो अनक्लेम डिविडेंड है कोई, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर बचा हुआ है, उसके लिए यदि कोई स्टेक इंटाइटलमेंट है किसी का, तो वो इस फॉर्म में हमारे उनके डिटेल्स को डालना पड़ेगा, और देन जा करके हम इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो दीज एवरीथिंग इज़ ओके। बस यहाँ पे अप्लीकेबल यदि कोई टैक्स की डिडक्शन करने हैं, जैसे उसमें TDS डिडक्ट करना है, या फिर अदर कोई टैक्सेस अप्लीकेबल टैक्सेस कोई अदर लॉ के तहत अप्लीकेबल है तो उसको डिडक्ट करना है, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बन रहा है वो यहाँ पे तो प्रोविजन लिखना पड़ेगा, एंड देन अमाउंट कितना बन रहा है टैक्स का वो, और रीजन ऑफ अनक्लेम डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स क्यों है, वो क्यों अनक्लेम्ड है, ठीक है। तो वो चीज़ मिलने पड़ेगा। ये तो उतनी कोई खास अमेंडमेंट है नहीं, बट चलो ये चेंजेस ऐड ऑन किया गया है। होप कि हम लोगों ने इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया, बट इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपके सामने प्रेजेंट करता तो दैट वुड हैव बीन वेरी फ्रूटफुल। बट चलो ठीक है, हम लोगों का एक डिस्कशन तो हो ही गया, एंड मोटा मोटी तौर पे हमने जो भी अमेंडमेंट है उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।